We cheer them on every time they enter the ring. We applaud and celebrate when they break records and win medals. We grieve with them when they lose. Today, some of India's top wrestlers are fighting the toughest bout of their lives, a bout for their dignity. Pitted against them is the man who represents the system, Brij Bhushan Singh, till recently the Wrestling Federation of India's chief and a sitting MP of the BJP. Now, 4 months ago, these wrestlers accused him of sexually abusing 7 wrestlers, including a minor. They hit the streets in protest. A probe was ordered by the Sports Ministry via the IOA. The report has been submitted, but there is no clarity on the charges against Brij Bhushan. Is he guilty or not? We don't know. That part has not been made public. Probably fearing the worst, the wrestlers are back on Delhi streets. It is day 3, as I said. An attempt at lodging an FIR failed, so they knocked the doors of the Supreme Court. The apex court called this a very serious issue. Now, interestingly, the Delhi police has told the Supreme Court that they will file an FIR if it is ordered by the apex court. Else, they say, they need time to conduct preliminary investigations before they can lodge the FIR. Wrestlers, on the other hand, are accusing the Delhi police of not filing the FIR for political reasons. In fact, they say the police has leaked names of the complainants, and now these wrestlers, I beg your pardon, complainants, are getting threats and inducements to withdraw the case. What is going on? Why is the probe report not being made public? Either Brij Bhushan is guilty or he's innocent. Why try and hide whatever it is? Let me put that question to my guests who are joining me this evening. Rahul Mehra is a lawyer at the Supreme Court. Jagmati Sangwan is a former volleyball player joining us on the broadcast. And Rakesh Singh is a coach and General Secretary of the Haryana Wrestling Association. Thank you very much. In a bit from now, we'll also be joined by Bajrang Punia, one of the wrestlers who's leading that protest here in Delhi. Rahul Mehra, first let me come to you. What do you make of the entire sequence of events that has played out in the last 4 months? Look, at the heart of the entire debate is Brij Bhushan guilty of sexual abuse or not? It's been 3 months since the probe panel was formed, and yet we are not any wiser on that one question. So it's unfortunate that the wrestlers, and that also international wrestlers who are, who have represented India and brought accolades to the country by winning medals in Commonwealth Games, Asian Games, are the ones who are being treated like this. No, in fact, even an ordinary sports person should not be treated like this by the government of the day. It's extremely unfortunate. It's uncalled for. But, the way the events have turned out, I'm neither shocked nor surprised, because I've seen enough from the governments. And I talk about not only this government, but the previous governments also. All of them are complicit in shielding their own men who are ruling the roost in various national sports federations. In this case, Brij Bhushan Singh, who is a member of parliament of BJP, he undoubtedly is being protected by the powers that be. Even in the court today, unfortunately, the Solicitor General, instead of coming to the court and saying that we will register the case immediately, which is the law of the land, and I would appreciate if you give me 30 seconds to explain as to how it is mandated under the law to register a FIR immediately. What the highest law officer came to the court and said was that we need to conduct a preliminary inquiry. The preliminary inquiry is to be conducted as per Lalita Kumari Constitutional Bench judgment of 2013-14, only in cases such as matrimonial or family disputes, such as medical negligence, so that doctors can be protected to a certain extent, since they discharge very noble profession. In corruption cases, so that certain officers' bureaucracy is shielded in a certain manner, and in commercial offenses. So these are generally the offenses in which a preliminary inquiry is permitted. That also, a preliminary inquiry initially in the first part of the judgment was mandated to be concluded within 7 days. However, that period was increased to 15 days and maximum of 6 weeks. So 15 days ordinarily you have to complete the preliminary inquiry in those kind of cases. Now, this is surely not a case which falls in that category, number one. This is a heinous offense if somebody has dealt with a daughter, a young lady under the age of 18,
in this case, one of the girls is 16, and therefore it invites, the provisions under the POCSO Act, which are quite stringent. And the preliminary inquiry, even if conducted, is only for one and one purpose alone. And that is that it will find out during the preliminary inquiry not the veracity of the complaint, not the genuineness of the complaint, not the truthfulness of the complaint. How the only and only thing it will find out is during that preliminary inquiry is whether the complaint, the way it is drafted, discloses commission of a cognizable offense or not. In this case, it is absolutely beyond any reasonable doubt that the complaint discloses commission of cognizable offense, and therefore it is a dereliction of statutory duty of a police officer under section 166A of the CRPC to have not registered an FIR immediately. There is no question of a preliminary inquiry. There is no question of delaying it. And if the SHO or the station house officer who's in charge of the police station and all other police officers who are involved in this matter are trying to not register the case, as is the case in this particular instance, then each one of them, an FIR can actually be registered against, can and should be registered against each one of them. Therefore, not only register a case against the alleged person, it is not as if he's going to be proven guilty immediately. Obviously, he remains innocent unless proven guilty, but the law must take its own course. Serious offense, disclosing commission of cognizable offense, FIR has to be registered, and officers who refuse to register an FIR has to be registered against them as well. Fair point. फेयर पॉइंट। राकेश सिंह जी, आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एलिगेशन ये है, अब देखिए लॉयर हैं हमारे पैनल पे, वो तो साफ साफ कह रहे हैं कि आज जो सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने बोला है वो सब सिर्फ जलेबी खिला रहे थे, सुप्रीम कोर्ट को घुमा रहे थे। अंडर लॉ दे आर ऑब्लिगेटेड टू फाइल दिस FIR। अब रेसलर्स जो हैं वो कह रहे हैं, बजरंग पुनिया हमारे साथ थोड़ी सी देर में जुड़ेंगे, रेसलर्स कह रहे हैं कि सिंपल बात है, ना तो प्रोब रिपोर्ट पब्लिक की गई है, क्यों नहीं की गई है, और दूसरी बात, अगर दिल्ली पुलिस FIR भी नहीं लॉन्च कर रही है, वो इसलिए नहीं लॉन्च कर रही है कि पूरा प्रोसीजर चल रहा है, वो इसलिए नहीं लॉन्च कर रही है कि उनके ऊपर पॉलिटिकल दबाव है कि FIR नहीं लॉन्च किया जाएगा। इनफैक्ट सो मच सो कि दिल्ली पुलिस ने जितनी लड़कियां हैं जिन्होंने कंप्लेन की है उनका नाम तक लीक कर दिया है, और अब रेसलर्स कह रहे हैं कि उन लड़कियों को बार बार फोन आने, थ्रेट्स है कि आप केस विड्रॉ कर लीजिए, पैसे का लोभ दिया जा रहा है, आप पैसे विड्रॉ, आप केस विड्रॉ कर लीजिए। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये रेसलर्स कह रहे हैं। तो जो चल रहा है क्या ठीक चल रहा है? मैडम नमस्कार। जो अभी मैं सुन रहा था, अभी हमारे वकील साहब जो बोल रहे थे वो अपने कानून के हिसाब से सही बोल रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, ये जो रेसलर हैं बृजभूषण शरण जी करीब 11 साल से इस पद पे हैं, और ये जितने भी रेसलर यहाँ बैठे हैं इनका भी कैरियर 11 और 12 साल का वहां पे कैंप में रहते रहते हो गया है। ये बृजभूषण जी का जब समय आया है, जब उनको जाना है इस पद से, और उन पे इस तरह के एलिगेशन लगाना, ये 1-2 महीने पहले भी, 4 महीने पहले भी इनके गुणगान गा रहे थे कि कुश्ती को बृजभूषण शरण जी ने इतने ऊंचाई तक पहुंचा दिया। इवन आपके ये जो बजरंग पूनिया है, इसका आप बयान सुनिए, कोई 5 महीने हुए हैं तभी नेशनल हुआ था हमारा, और इसने खुद कहा था कि ऐसा नेता, ऐसा हमारा जो है इंडिया का जो है कभी भी प्रधान बन नहीं सकता, जो कुश्तियों को इतनी हाइट पे लेके गए हैं। आज अचानक क्या हो गया? ये लड़ाई मैडम कुछ नहीं है, ये लड़ाई केवल बृजभूषण शरण की जगह को कब्जाने के लिए ये एक फोगाट परिवार और ये लोगों का एक मकसद है कि फेडरेशन पे हम कब्जा कर लें। ये तो एक एलिगेशन लगाना सबसे छोटा काम जो है, जो सेक्सुअल हरासमेंट का है, वो लगाई दिया है। तो मैं कहता हूँ इसकी CBI जांच हो, और जिस बच्चे के साथ गलत हुआ उसको न्याय मिले, और जिसने गलत किया है उसको सजा मिले। नेताजी भी यही बात कर रहे हैं, मैं भी यही बात कह रहा हूँ। तो अभी सरकार ने कमेटी बनाई, 5-6-7 लोग थे उसमें। एक तो जो शिकायत करता है उसकी बहन है बबीता फोगाट, जो हरियाणा सरकार में बीजेपी की चेयरमैन भी है। वो खुद वहां पे जज बन के बैठी है, और सभी बच्चों के रिकॉर्ड हैं वहां पे। ऐसा नहीं है कि वर्बली किसी से पूछ लिया, सबकी रिकॉर्डिंग हुई है। वो सरकार से बढ़ के तो हम है नहीं। सरकार ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की नहीं की, उन्होंने, वो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन सरकार का जो पक्ष है वो देखना चाहिए था, इतना उतावला नहीं होना चाहिए था।
और पहलवानों को भी थोड़ा सोचना चाहिए कि सरकार ने जो कमेटी बनाई वो सोच समझ के बनाई है और वो इनके हक में बनाई है, इनसे पूछ के बनाई है। बबीता फोगाट इसमें पहले नहीं थी और उसको लिया गया, इनके कहने पे लिया गया। आज बबीता ने भी कह दिया कि मेरे को जबरदस्ती साइन कराइए। जिस दिन बबीता से जबरदस्ती साइन कराए उस दिन बबीता कहाँ गई थी? लेकिन ये एक राजनीति षड्यंत्र, भूपेंद्र हुड्डा इसमें इन्वॉल्व है, पूरी कांग्रेस इसमें इन्वॉल्व है। और जो लोग कह रहे हैं हम खाप वाले आगे हैं, खाप वाले कौन बैठे हैं यहाँ पे? कोई भी खाप वाला मुझे नजर नहीं आया। ठीक है, पहलवानों के साथ गलत हुआ तो 100% न्याय मिलना चाहिए, हम अपनी बेटियों के साथ हैं। लेकिन किसी पे इतना बड़ा एलिगेशन लगाना, उसको प्रूव करो। प्रूव करने के लिए सरकार है, कोर्ट है, उसका वेट करो। अब जो शिकायत करता वो कहते हैं आज ही फांसी तोड़ दो, आज ही मुकदमा दर्ज करो। अरे सरकार की कमेटी है, सरकार ने कमेटी बनाई है, तो सरकार की कमेटी जब तक रिजल्ट नहीं देगी तब तक फैसला कैसे होगा? Can I just respond? अच्छा रुक जाइए, अब ठीक है, मैंने आपकी पूरी बात सुन ली। I think Bajrang Punia is with me, Rahul. Will you just give me a chance to ask him that question? Let me just see if Mr. Punia is through. Bajrang जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? आवाज क्लियर नहीं आ रही। आवाज क्लियर नहीं आ रही, तेज आ रही है, तेज आ रही है। कट के आ रही है, ब्रेक हो गया। अब आवाज क्लियर आ रही है? आवाज ब्रेक हो गया रही है। अब आवाज क्लियर आ रही है बजरंग? अच्छा ठीक है, you know what we'll try and do. These are the perils of live television. I'm just going to tell my producers to patch Bajrang Punia again because it's important to hear what he has to say. Rahul, go ahead. You wanted to respond to what Rakesh Singh is saying. Go ahead. See, what has just been said is that let there be a CBI inquiry. CBI inquiry is far, far beyond right now. If you can't even get a case registered with the Delhi police, which comes under the Home Ministry, I mean, what can you expect out of a CBI? Right now, the basic and the first basic step is, and I agree where he says that, due process should be followed. But the due process, for the first step of that due process is that irrespective whether this is a complete falsity as a complaint, that is what the law of the land is. Let's take his argument and Brij Bhushan Singh's argument that he's being targeted, they want to capture, it is a political shadyantra against them and conspiracies are happening. Let everything what he's saying be taken as gospel truth. Even then, the law of the land is, if there is a complaint by a girl less than 18 years, POCSO will be invoked immediately. Over 18, IPC comes into it. Correct. And both IPC and POCSO say only one thing, because the law of the land by the Supreme Court is only one, that if there is a commission of if there is a disclosure of commission of a cognizable offense, which it is in this complaint, then there is no other way but to register a case. Obviously, once a case is registered, it is registered to find out whether a case is made out or not made out. And police can very well then subsequently say, which it will, if the political masters are going to ask it to say, it will not be a free and fair investigation by the police. Police will give a clean chit to Mr. Brij Bhushan Singh, and again 3 months later, probably it will be situation back to square one. Okay, now give me a minute to go to Bajrang Punia. Bajrang जी, आपको उम्मीद है मेरी आवाज सुनाई दे रही है? सुनाई दे रही है या नहीं? दे रही है तो नमस्कार बोल दीजिए सारे व्यूअर्स को। हाँ जी नमस्कार जी, अभी आवाज आ रही है। बजरंग जी, हमारे साथ पैनल में जो हैं वो राकेश सिंह जी हैं, आप उनको जानते होंगे, वो जनरल सेक्रेटरी हैं हरियाणा रेसलिंग एसोसिएशन के, तो आपका उनसे काफ़ी ताल्लुकात रहा होगा। वो एक बड़ी सिंपल सी बात बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि 11 साल से ब्रिज भूषण जो हैं वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के कर्ता धर्ता रहे हैं। 11 साल तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बजरंग पुनिया ने भी उनकी खूब तारीफें की। सडनली 11 साल बाद क्या हो गया? ये हुआ, वो कहते हैं कि सारा ये पॉलिटिक्स है, ये फोगट परिवार जो है कब्जा करना चाहता है वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का, इसलिए ब्रिजभूषण को बदनाम किया जा रहा है। इसेंशियली आप पे आरोप है कि सारे आरोप झूठे हैं एंड पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं। बजरंग जी, चलो जी, राकेश जी आपको बधाई हो। अगर ब्रिजभूषण इतने ही सच्चे हैं तो वो आप उस लड़की के पास क्यों जा रहे हो? आपके मेरे पास सबूत है। आपने जो लड़की के डॉक्यूमेंट्स भेज रखे आगे,
लड़की के कोच के पास जो कॉल कर रखा आपने कि इस लड़की को कैसे भी करके मनाओ, तो वो आपने क्यों कर रखा है? और मेरा राकेश जी से कभी ताल्लुकात नहीं हुआ। जिस दिन पहले दिन धरने पे बैठे थे उस दिन ये मेरे पास आए थे कि मैं खिलाड़ियों के साथ हूँ। मैंने इनको तब भी बोला था अगर साथ हो तो सामने आओ, पीछे से नहीं, चोरी नहीं चाहिए हमें। वो बोल रहे कि ब्रजभूषण को आप कैसे कितना दिन से जानते हो? इनकी जो फेडरेशन बनी उनको हरियाणा में जो सेक्रेटरी बना रखे उनकी तो कोई मान्यता ही नहीं है, जबरन बना रखी है। और वो ये अगर इतने ही पाक साफ है तो वो उस लड़की के ऊपर क्यों दबाव बना रहे हैं? जो विक्टिम लड़कियां हैं उनके ऊपर क्यों दबाव बना रहे हैं? कभी उनकी फैमिली के ऊपर पैसे का, बदमाश गुंडागर्दी का दबाव बनाया जा रहा है, उनके फैमिली मेंबर को, उनके रिश्तेदारों को। हमें तो पुलिस वालों को पता है कि वो लड़कियां कौन है जिन्होंने कंप्लेंट दी है, उसके अलावा किसी को भी नहीं पता। इनको कैसे पता चल गया वो चीजें कि ये लड़कियां उनके घर पैसे ले जा रहे हैं ये लोग, उनके कोचेज? मेरे पास सबूत है, ये नहीं बोल रहा मैं। आपने वो चीजें उनके कोच को भेज रखी हैं और कॉल कर रखा है, उनके मेरे पास है। और वो चीजें मैं आपको जरूर दिखाऊंगा जब आप मेरे सामने आएंगे कि ये चीजें हैं। अगर ब्रजभूषण इतने अच्छे हैं तभी आप लोगों को बनाया है, क्योंकि आप लोग उसके जो आदेश और निर्देश होते हैं उनका पालन करते हैं। लड़कियों को दबाव बनाया जा रहा है और बात फेडरेशन में बहुत सारी चीजें बहुत गलत चल रही थी। ये सवाल आप बच्चों को जबरदस्त ट्वीट भेजे जाते थे। आपने बहुत अच्छी बात बोली, जरा राकेश सिंह जी को जवाब देने दीजिए। बच्चों को ट्वीट भेजे जाते थे। बजरंग, जरा राकेश सिंह को जवाब देना चाहिए, देने दीजिए। राकेश सिंह जी, बजरंग साफ साफ पूछ रहा है, बड़ा सिंपल सवाल पूछ रहा है। अगर ब्रिजभूषण जी इतने पाक साफ हैं, गंगा की तरह साफ हैं, तो बच्चियों पे दबाव क्यों बनाया जा रहा है? मैं आपको क्यों एक उनके घर पैसे लेके जाया जा रहा है, या फोन कॉल्स किए जा रहे हैं उनको वाया देयर कोचेस? एक मिनट सुनो मेरी बात। बजरंग पूनिया जी हमारी देश की शान है, बहुत अच्छे पहलवान हैं, सारा देश इनकी कदर करता है और ऐसे सपूत हर घर में पैदा हों, मैं ऐसी कामना करता हूं। लेकिन बजरंग जी जो बोल रहे हैं वो 100% गलत है। ना मैं उस लड़की को जानता, ना मैं उसके फादर को जानता, ना मैं उसके कोच को जानता हूं। जो भी बात हुई है ये सरासर गलत और झूठ बोल रहे हैं। मेरी किसी एक रोहतक में कोई कोच है, उससे ये बात हुई थी, यार ऐसा ऐसा पता चला है विशेष सूत्रों से, और ना कभी किसी के पैसे की बात की, ना हमें पैसे देने, और ना हमने किसी पे दबाव बनाना। वो बेटी मेरी भी तो है, वो भारत की बेटी, मेरी भी बेटी है। अगर ब्रजभूषण ने उसके साथ गलत किया है तो सबसे पहले रिजाइन मैं देता हूं और अपनी बेटी के साथ खड़ा हूं। लेकिन आरोप तो वो लगाओ जो सत्य हो। यही बजरंग पूनिया 10,000 2,000 लोगों की नेशनल जब हुआ, जब इन्हें कसीदे पड़े थे कि नेताजी जैसा इंसान नहीं होना, नेताजी ने कुश्ती आसमान पे चढ़ा दी, उस दिन बजरंग पूनिया कहां गया था? जिस दिन ये अपने आप उसकी तारीफ कर रहा था हमारे नेताजी की, आज ये उसको गाड़ी भी बक रहा है, विदेश भी भगा रहा है, सेक्सुअल हरासमेंट में भी आ गया, वो चोर भी हो गया, उसने सारे पैसे भी खा लिए। लेकिन बजरंग क्यों भूल गया? तूने 10 साल 11 साल तक नेताजी के साथ ही कुश्ती करी है, और आप सारा ही परिवार केवल नेताजी के गुणगान गाते थे। आज अचानक क्या हो गया आप लोगों को? और जो लड़कियां आप बता रहे हो, इन्होंने, मैडम एक मिनट, इन्होंने जाके सबसे पहले एफआईआर ही करानी थी, फिर ये सरकार के पास गए, सरकार ने कमेटी बनाई, कमेटी पे इनका यकीन नहीं है। बजरंग की खुद साड़ी जो हरियाणा में चेयरमैन है वो इसकी जज रही है, उस पर विश्वास नहीं लोगों ने। आप बोलिए मैडम। ठीक है राकेश सिंह जी, आपने अपनी बात बोल दी। बजरंग जी को जवाब देने दीजिए। बजरंग जी जवाब आप दे दीजिए, आपने पूरा सुन लिया है राकेश सिंह जी क्या बोल रहे हैं। और लेकिन उनकी एक बात से मैं सहमत हूं कि जिन लड़कियों ने सेक्सुअल अब्यूज, सेक्सुअल असॉल्ट के चार्जेस लगाए हैं, अगर उनको ऐसा लग रहा था कि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री कुछ नहीं कर पाएगी इसके बारे में और जो प्रोब पैनल है वो बायस्ड रहेगी, तो वो सीधे पुलिस के पास एफआईआर लिखवाने क्यों नहीं गए? ये तो बात सही बोल रहे हैं राकेश सिंह जी। हमने पहले भी बोला था मैडम जी कि हम लड़कियों को आगे नहीं लेके आना चाहते, और अगर जरूरत पड़ी तो उनको आगे भी लेके आएंगे, ये हमने पहले भी बोला था। हमें ये नहीं पता था कि खिलाड़ियों के साथ ऐसे राजनीति होगी कि, और नेताजी की ये बोल रहे हैं बार बार, नेताजी हमारे नेताजी वो सुभाष चंद्र बोस है क्या? 84 मुकदमे उनके ऊपर पहले भी। नेताजी आपके नेताजी होंगे? क्योंकि जब वो ट्वीट भेजे जाते थे ना कि ये करो, ये बोलना है, तो वो फेडरेशन के लोग थे।
खिलाड़ी सिर्फ इसलिए नहीं बोल पाते क्योंकि दबाव बनाया जाता है। हर जगह इन्होंने 4-5 स्टेट तो अभी हमारे को उन्होंने बोला कि पहलवान जी हमें तोड़ तोड़ के रख दिया है जबरदस्ती, हम कोर्ट से भी जीत के आगे, उसके बाद भी दबाव बनाया जा रहा है। तो इसका मतलब बृजभूषण तो कानून से भी बड़े हो गए। और रही बात परिवार की, अगर मैं विनेश या जंतर मंत्र में बैठे हैं, अगर हमारे में से कोई भी फेडरेशन में कोई भी पद के लिए खड़ा हो जाए आगे जो आने वाले इलेक्शन हैं, तो मैं कभी रेसलिंग के बीच में नहीं आऊँगा। हमें कोई लालच नहीं, 24 के ओलंपिक की तैयारी कर रहे हैं हम। सरकार पे हमें विश्वास किया, सरकार पे हमें कि हम लड़कियों के, हमने पहले भी यही बोला था जिस दिन आए कि हम लड़कियों को सामने नहीं लेके आना चाहते। नेताजी आप लोगों के होंगे, नेताजी अभी आए हो आप तो बजरंग, मैं मुझे नहीं पता आपकी कितनी बातें होती हैं, पर आपने तो नेताजी को 11 साल का वो महीना में मेरे हिसाब से आपने 3-4 महीने में पढ़ लिया वो सारा नेताजी का, कितने अच्छे हैं तुम्हारे नेताजी। महीने में कैसे अच्छा बजरंग, मैं आपसे फिर एक बड़ा सिंपल सा सवाल जानना चाहूंगी। एक मिनट राकेश सिंह जी, मैं बजरंग से एक सवाल पूछना चाहती हूँ। बजरंग, मुझे एक बात बताइए, वो जो प्रोब पैनल बना था, आप वेदर यू अग्री विद इट और नॉट, प्रोब पैनल सरकार ने बनाया था। अब उस प्रोब पैनल की रिपोर्ट जो है वो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को सौंप दी गई है। आपको क्यों लग रहा है कि उसके कंटेंट्स को पब्लिक नहीं बनाया जा रहा है? देखिए, सबसे बेसिक सवाल जो उस प्रोब पैनल ने आंसर करना है, जिसका जवाब देना है कि क्या बृजभूषण ने इन लड़कियों के साथ सेक्सुअल अब्यूज किया था या नहीं किया था। अब उसके बारे में ना आपको पता है, ना मुझे पता है, ना राकेश सिंह जी को पता है, ना राहुल मेहरा को पता है, क्योंकि प्रोब रिपोर्ट सबमिट तो हो गई है, लेकिन प्रोब रिपोर्ट में सेक्सुअल असॉल्ट चार्जेस के बारे में क्या बोला गया हमको नहीं पता। आपको क्यों लग रहा है कि सरकार ने चुप्पी बनाए रखी है इस पूरे मामले में, जबकि प्रोब रिपोर्ट इस समय उनके हाथ में है? जी मैडम, कमेटी के जो सदस्य थे उनकी आपस में लड़ाई चल रही है। आप लोग भी न्यूज़ देख रहे हैं, हमें भी न्यूज़ के माध्यम से पता चल रहा है कि आपस में वो बोल रहे हैं कि रिपोर्ट मेरे को जबरदस्ती साइन करवाए गए। एक बोल रहा है कि हमने बबीता को पढ़ाया था, और चलो आपकी बात मान ली कि उनमें बोला कि भाई उनके पास कुछ नहीं है। जो राधिका श्रीमन है, उन्होंने खुद बोला कि एक लड़की के साथ सेक्सुअल हरासमेंट की वो आई है। एक लड़की तो है ना, उन्होंने खुद बोला है ये चीज कि एक लड़की ने सेक्सुअल हरासमेंट का केस वो बताई है, शिकायत बताई है। तो एक लड़की ने, उन्होंने खुद बोला ये चीज, तो एक ने तो बता दिया। और कमेटी पे हम क्या विश्वास करें? वो आपस में लड़ रहे हैं सभी लोग, उन पे क्या विश्वास करें हम? क्योंकि उसमें कुछ गवर्नमेंट के जो चेहरे हैं, जो खिलाड़ी थे, वो जो बच्चे लोग वो है साई में जो रिटायर हैं अलग अलग पोस्ट से, तो वो तो सब दबाव में दे रहे हैं। जब दिल्ली पुलिस एफआईआर नहीं कर रही है 5 दिन से, तो सरकार क्यों बचाना चाहेगी बृजभूषण को? मैं आपसे पूछ रही हूँ, सरकार क्यों बचाना चाहेगी बृजभूषण को? नहीं, पुनिया जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ, सरकार क्यों बचाना चाहेगी बृजभूषण को? ये सरकार तो बोलती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। वो उनकी रूलिंग पार्टी के जी, वही हमने अभी कैंडल मार्च भी किया था कि सरकार अगर नहीं देख पा रही हो तो हम रोशनी दिखाने का काम करेंगे। वही चीज हमने भी आज प्रधानमंत्री जी से भी हमने अपील की कि अगर आपकी संज्ञान में ये चीज नहीं है, अगर जो सारा दिन प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एक सेकंड मैडम, कभी सुबह एक्सरसाइज है, प्लीज प्रार्थना है। हमने प्रधानमंत्री जी से अपील भी करी है, ठीक है कि आप इस चीज को अगर आप तक नहीं पहुंची है तो आप लोगों के माध्यम से हम इसे पहुंचा भी रहे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा आपने हरियाणा से ही शुरू किया था, और हरियाणा की बेटियां यहाँ बैठी हैं, पूरे देश की बेटियां यहाँ बैठी हैं। आप उन बेटियों को क्यों नहीं बचा रहे जो अपने न्याय के लिए यहाँ पे मच्छरों में बैठे हैं, गर्मी में बैठे हैं, तपती धूप में यहाँ पे फुटपाथ पे? उनको अब एशियन गेम्स और ओलंपिक क्वालिफाई की तैयारी करनी चाहिए थी, ना कि वो फुटपाथ पे सोने की तैयारी कर रहे हैं अभी। ठीक है, और आप कह रहे हो कि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री बृजभूषण को बचा रही है क्योंकि वो उनके एमपी हैं। ये एलिगेशन आप लगा रहे हैं कि मामला सिर्फ इतना सिंपल है,
कि वो अपने आदमी को बचाना चाहते हैं? देखिए, हमें तो अभी तक तो यही लग रहा, क्योंकि अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है मैडम। नहीं तो ऐसे केस हुए हैं, सेक्सुअल हरासमेंट का केस है, असम का अभी उन्होंने एक दिन में कंप्लेंट दी, उससे अगले दिन उसको उस पे एक्शन कर दिया। अभी आप 5 दिन हो गए या बैठे हुए मच्छरों में, या दिल्ली पुलिस बोल रही है हम इंक्वायरी कर रही है। किस चीज की इंक्वायरी कर रहे हैं आप लोग? ठीक है, आप श्रीनिवास बीवी की बात कर रहे हैं जो कांग्रेस के नेता हैं और जिनके अगेंस्ट एक कांग्रेस के ही नेता जो हैं असम की, उन्होंने कंप्लेन करी है। मैं जरा जगमती सांगवान को लाना चाहती हूँ। आपने हरियाणा की बेटियों की बात की, तो जगमती सांगवान, थैंक यू वेरी मच। शी इज अ फॉर्मर वॉलीबॉल प्लेयर। जगमती जी, सबसे पहले तो आपसे माफी मांगना चाहूंगी कि आपके पास इतनी देर में आ रही हूँ, लेकिन कुछ चीजें थी जो मुझे समझ नहीं थी। अब मैं आपसे एक चीज समझना चाहती हूँ। बार बार ये बोला जा रहा है कि अगर सेक्सुअल अब्यूज हो रहा था लड़कियों का, तो व्हाई डिडंट दे स्पीक अप? पहले क्यों नहीं बोला? 4 साल बाद बोलने की क्या जरूरत है? 5 साल बाद बोलने की क्या जरूरत है? अगर आप इतनी देर में इन चीजों के बारे में बोलेंगे तो ऐसा लगेगा कि आप जो कर रहे हैं, आप जो ये सारी बातें आप खुल के बोल रहे हैं, इट कम्स विद एन एजेंडा, कि ये किसी तरह का प्रोपेगेंडा है। देखिए, जो खेल का जो करियर है वो बहुत ही मुश्किल से 7-8 साल की इन्वेस्टमेंट के बाद कोई खिलाड़ी जो है वो मेडल जीतने के स्तर पे आता है। और जो हालात हैं यहाँ पे देश के अंदर, जब भी यौन शोषण के खिलाफ कोई आवाज उठाने को आगे आती हैं महिलाएं, लड़कियां, और खास तौर पे जब हाई अप्स होते हैं जिनके खिलाफ कंप्लेंट होती है, तो उनको किसी को न्याय नहीं मिलता, उनका डबल विक्टिमाइजेशन होता है। ये एक हकीकत है इस देश की, और ये खिलाड़ी लड़कियां भी इसको बखूबी जानती हैं। कहीं पे भी कोई ऐसे मैकेनिज्म्स नहीं है सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए। इवन WFI के अंदर इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी नहीं थी, और जिस कमेटी के सामने लड़कियों ने अपनी बातचीत रखी है, तो उस कमेटी को रिपोर्ट देनी चाहिए थी 2 हफ्ते के अंदर। उसके बाद एक्स्ट्रा टाइम लिया गया। आज तक देश जो है वो ये जानना चाह रहा है कि उस कमेटी की फाइंडिंग्स क्या थी। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। दैट इज व्हाई दीज रेसलर्स have been forced to go for FIR and to sit on dharna again on the Jantar Mantar. And people should mind it. The secretary of the Association of Haryana, he should think over the issues rather blaming the individuals. 7 लड़कियां हैं जिन्होंने FIR दर्ज करवाई है। अगर उसके अंदर झूठ है तो FIR दर्ज करके दूध का दूध, पानी का पानी क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों उसको डिले किया जा रहा है? जबकि जो पॉश का जो एक्ट है जिसके अंदर एंटी सेक्सुअल हैरेसमेंट का जो कानून है, उसके हिसाब से जब भी कोई नाबालिग लड़की शिकायत करने आती है तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन आप जो है वो टाले जा रहे हैं चीजों को। और जब ये साक्षी मलिक जब ये मेडल लेकर आई थी, तो देश के प्रधानमंत्री ने क्या कहा था? देश का प्रधानमंत्री कह रहा था कि ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है, इसको बेटी खिलाओ तक एक्सटेंड करते हैं हम आज। कहाँ गया वो एक्सटेंशन? उसके बाद जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना चाहिए था पंचायत स्तर तक, और सेफ्टी सिक्योरिटी के मेजर्स जो है वो बनाने चाहिए थे, ठीक है, जुमला बन के रह गया वो जो है। लेकिन लड़कियां मोटिवेट होके आगे आई बेचारी खेलने के लिए। गरीब परिवारों की लड़कियां आती हैं, गरीबतम परिवारों की रेसलिंग के अंदर, वो अपना सब कुछ दाव पे लगा के और यहाँ पे करियर देखती है एक तरह से। आज जब उसकी चोटी की खिलाड़ी जो है साथ साथ ये कहने को मजबूर है कि उनके WFI के अध्यक्ष जो है वो और उनके लगे भगे उनके साथ इस तरह की सेक्सुअल असॉल्ट करते थे, तो नीचे के स्तर पे क्या नहीं हो रहा होगा इस यहाँ पे हरियाणा में हम 3 महीने से जो खेल मंत्री है उसके खिलाफ जो जूनियर कोच है उसने जो आरोप लगाए थे, नॉन पेलेबल धाराओं में मुकदमा दर्ज है उनके खिलाफ। लेकिन मजाल क्या कि आज तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई हो, चार्जशीट तक दाखिल नहीं की गई है। हमने सैकड़ों प्रदर्शन किए हैं, आए दिन यहाँ के नागरिक जो है वो बात रखते हैं। जगमती जी, मेरा समय खत्म। ओके, आई थिंक यू बीन वेरी आर्टिकुलेट जगमती जी, एंड आपने हमको ठीक है, आई थिंक यू बीन वेरी आर्टिकुलेट, यू हैव बैटेड फॉर द रेसलर्स वेरी वेल। राकेश जी, मेरे पास कुल मिला के 20 सेकंड है, उससे ज्यादा नहीं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपने अब सबको सुना,
अब आप बोलिए कि आप क्या कहना चाहते हैं। कोई भी लड़की आसानी से आप बाहर आकर ये नहीं बोलती है कि उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है और इतने साल से सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। अगर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 7 लड़कियां बाहर आके ये कह रही हैं, कैन यू रियली डिसमिस दिस एज अ पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी? राकेश सिंह जी, ये पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी सिर्फ पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी तो नहीं हो सकती। ये केवल पॉलिटिकली है और कुछ भी नहीं है। ये 11 साल से सारे पहलवान यहीं थे, नेताजी यहीं थे, और जिस लड़की के साथ ऐसा हुआ वो जाके सिटी कंप्लेंट कराती है, 1 मिनट में मुकदमा दर्ज हो जाता। हमारे भाई ने बोला कि एक लड़की ने बोले ऐसा, तीसरी लड़की की दूसरी की जरूरत ही नहीं है। सेक्सुअल हरासमेंट एक ही लड़की काफी है और वो मुकदमा दर्ज कराने में सक्षम है। लेकिन सरकार को ये लगा ये झूठी है, तो इसलिए उन्होंने जांच करी। जांच का इन्होंने वेट करना चाहिए था। और इसमें साक्षी खुद सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी की मेंबर रही है। शिकायत की हो, विनेश के पास प्रोब ने तो कुछ बोला ही नहीं है ना, अपने कोच को की हो। ये मैडम जो सांगवान बोल रही है, the probe is quiet on sexual assault charges. नहीं, the probe is quiet on sexual assault charges सबसे पहले। हाँ, और दूसरी बात that these wrestlers have gone to the Delhi police. The Delhi police has still not filed their complaint, which is why they have had to go to the Supreme Court. चलिए, ये बहस जारी रहेगी. We leave it there for the moment. नहीं, सरकार doesn't always speak the gospel truth. ये बात हमको मत बताइए। चलिए, we leave it there. I think we got all sides of the story in. So Rahul Mehra, thank you very much. Jagmati, thank you very much. Rakesh Singh, thanks. And Bajrang Punia joining us as well. Thank you very much. This debate, I think, will continue now in the Supreme Court. We'll be keeping a very close track of it here on Mirror Now. For the moment, thanks very much for watching.